beautiful people over there. A warm welcome to my YouTube channel Muskan Teaching Classes. I hope you all are doing absolutely well and I always pray for your good health and safety. So I'm back again with a new topic. I hope everyone is listening me carefully. So today I'm going to talk on a new topic, that is tips to learn and speak English. Yeah, as you all know that practicing speaking is one of the most fun and rewarding part of learning English. Once you start even a little English also, speaking English, you will build some confidence in yourself. Yeah, that will give you a huge way to go around with full confidence. Okay, so today I'm going to give you those tips which will boost you with more energy, more confidence and more dedication towards English, spoken English. So let's begin with the tips I am going to give you today, how to learn English and why it is essential for us to go on these tips and follow and implement these tips in your daily life. It will definitely help you to learn and to speak very confidently in front of anyone you want to speak. So for that you have to just carefully listen these tips and try to understand these hints, and then you will implement in your daily life. I'm sure you will definitely learn all those vocabulary words, all those problems, obstacles you're facing to speak English. Your hesitation will go out. Just you have to follow these tips according to the need. So we'll start with the tips. So जैसे कि मैंने कहा था कि मैं कुछ tips देने वाली हूँ आपको English spoken के लिए. So these are the tips. You can see on the board. I have written already on the board so that it will be easy for you to note it down. अगर आप note करना चाहते हैं इन tips को, you can definitely note it down. ये better होगा आपके लिए कि note की हुई चीज़ों को आप बाद में read कर सकते हो. वैसे तो मैं one by one I'm going to explain these all tips, but if it's better if you note it down in your note copy और उसके बाद उनको धीरे धीरे आप उन पे implement करने की कोशिश करें, अमल करने की कोशिश करें. So these are few tips here I have written. There are so many tips actually. आपको ये पता होना चाहिए कि spoken English, speaking English, learning English एक skill है. It is एक हुनर है वो. उस हुनर को सीखने के लिए आपको काफ़ी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है. कोई भी चीज़ हम बिना प्रैक्टिस के नहीं कर सकते. So for speaking English, for spoken English, for learning English, as it is a skill, you have to work hard on it very much. आपको बहुत सारे efforts लगाने पड़ेंगे. अगर आपको कोई कहता है कि हम कुछ महीनों में, कुछ दिनों में English सिखा देंगे, it's not a true statement exactly. क्योंकि it will take a period of time to learn a fluent English. English एक फ्लुएंटली सीखना, फ्लुएंसी मीन्स बिना हेजिटेशन के बोलना सीखना इतना इजी नहीं है. इसके लिए आपको वर्ड स्टॉक करने होंगे, वोकैबुलरी वर्ड्स, अपनी प्रोनाउंसिएशन, अपनी हेजिटेशन को दूर करने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा. ये सारी चीज़ें क्रिएट होने में इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. सो इफ़ एनीवन इज सेइंग लाइक इंग्लिश, इतने अगर आपको बहुत सारे अकेडमीज़ हैं जो आपको स्पोकन इंग्लिश क्लासेस है जो आपको कहते हैं कि हम इतने दिन में आपको इंग्लिश सिखा देंगे, दिस आर नॉट एग्जैक्टली द ट्रू स्टेटमेंट्स, है ना. भले वो कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक आप कुछ टिप्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके डायरेक्टली 6 महीने में, 3 महीने में, 10 महीने में आप बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं सीख सकते जब तक आप उन पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. ओके, आप उस कोचिंग सेंटर्स में जाके नोट्स बना लिए, conversation लिख लिए, but if you are not practicing them practically and using in your daily life as usual, so आप उन चीज़ों को बिल्कुल ही सीख नहीं सकते. So my focus is like आप उसको नॉर्मल लाइफ में नॉर्मली यूज़ करें ताकि आप धीरे धीरे से ही ब्रोकन इंग्लिश से ही स्टार्ट करेंगे. बिल्कुल कुछ वर्ड्स को आप फ्रेजेस की तरह ही यूज़ करेंगे, नॉट कम्प्लीटली सेंटेंस, बट आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखेंगे एंड देन यू विल reach at that point when you can able to speak fluent English without hesitation, with full confidence. So these are some tips. चलिए इन टिप्स को हम एक एक करके देखते हैं.
सो स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल। मेरी पहली टिप में आपको ये बताया जा रहा है कि आप जितनी हो सके इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। आप बोलेंगे इंग्लिश हम जब सीखे नहीं है तो बोलने की कोशिश कैसे करेंगे। आई मीन टू से आप स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, कोई प्रोफेशन में है, कोई जॉब में है, कोई बिजनेस में है, और इन सब के बावजूद जो घर में है आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे। आपको मेन चीज़ इसी में एक और टिप आई है आपकी टेक्नोलॉजी। आप मोबाइल्स आजकल बहुत कॉमन है। ओके, सो आप इंग्लिश कैसे बोलना सीखेंगे। आप अपने बच्चों के साथ छोटे छोटे फ्रेजेस को, वर्ड्स को बोलना सीखेंगे, कोशिश करेंगे, है ना। आप पहले उनके साथ एक छोटे उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का जो ये वर्ड्स है ना, इनको आप इंग्लिश में एक एक वर्ड बच्चों के साथ बोलने की कोशिश करेंगे, जिससे उनको इन वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ फेमिलियर होंगे। हम कोई भी भाषा कैसे सीखते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए सुनते हैं। जैसे बचपन से एक छोटा बच्चा है, वो बिल्कुल उसको ना पढ़ना आता न लिखने आता, बट वो फिर भी अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखता है। इन द सेम वे आपको इन वर्ड्स को आपके बच्चों के माइंड में डालने होंगे। ओके, सो आप जितना हो सके इंग्लिश के बोलने की कोशिश कीजिए। एक तरीका आपको अपनाना होगा कि वर्ड्स को कलेक्ट करके छोटे छोटे वर्ड्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उनको आप अपने बच्चों के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, जो आपके आसपास है उनके साथ बोलना शुरू कीजिए, ताकि उन वर्ड्स को आप इंग्लिश में धीरे धीरे बोलेंगे तो उनके ऊपर एक होल्ड आएगा, एक पकड़ आएगी आपको। ओके, वो हो गए वर्ड्स और फ्रेजेस, छोटे छोटे फ्रेजेस। आपको कंप्लीट सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कंप्लीट सेंटेंस आप बोलना जानते ही नहीं है। सो सेकेंड वन, लिसन। आपको ये लिसनिंग एक बहुत बड़ी आपकी मेजर आप कह सकते हो एक स्किल है। सुनना भी एक बहुत बड़ी स्किल है। आप लोगों को सुनिए, आपके आसपास कोई भी बोल रहा है, आप टेलीविजन देखते हैं आजकल, मोबाइल तो एकदम कॉमन चीज़ हो गई है। आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूब में चैनल्स देखते हैं। आप सिर्फ सुनिए। आप स्कूल जा रहे हैं तो अपने टीचर्स को सुनिए। ओके, आपके टीचर्स आपसे इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में वर्ड्स बोलते हैं, इंग्लिश के लेसन, सोशल साइंस के लेसन्स पढ़ाते हैं आपको। उन सारे वर्ड्स को आप बहुत केयरफुली सुनिए। एक ये टिप हुआ कि आपकी लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप पहले सुनिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, फिर इन्हीं वर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वन इज रीड आउट लाउड। ये बच्चों के लिए स्पेशली है, जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं कम एज से, मिडिल एज से, जो भी किसी भी एज टाइम से वो अगर इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो आप कोई भी चीज़ रीड करते हैं, वेदर इट्स अ न्यूज़पेपर, वेदर इट्स योर टेक्स्ट बुक, ओके, और वॉट एवर यू आर रीडिंग आउट, ओके, आप कोई नोटिस पढ़ रहे हो उसको लाउडली पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि वो वर्ड्स आपके कानों तक क्लियरली पहुंचे। ओके, मन में पढ़ने से होता है क्या, आप वर्ड्स को आप क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, उनको माइंड तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। सो ट्राई टू रीड आउट लाउडली व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग इंग्लिश स्पेशली। सो लर्न अ न्यू वर्ड एवरी डे। ओके, हर रोज एक नई वर्ड सुनने की आप कोशिश कीजिएगा। ओके, जैसे कि मैंने कहा डेली वर्ड्स जो आप जानते ही है, उसके अलावा आप ऐसे न्यू वर्ड्स, जैसे आपके टीचर ने कहा वो वर्ड आप नहीं जानते, कैच इट अप एंड राइट, नोट इट डाउन इन योर नोट कॉपी। ये नया वर्ड आज मैंने टीचर से सुना है, इसको मैंने लिख लिया, उसका हिंदी मीनिंग आप निकाले एंड उससे आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपके टीचर्स हो या आपके आसपास के लोग ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। ट्राई टू पिक अप and try to catch every new word, try to learn new word every day. That is your fourth tip. And your fifth tip is work on your pronunciation. This is the main thing you have to concentrate, students. आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर करनी है। आजकल तो इतने ऐप्स आ गए मोबाइल में, आपकी प्रोनाउंसिएशन कोई भी वर्ड जो आपको हार्ड लग रही है, जो श्योर नहीं है आप, इफ़ यू आर नॉट श्योर दैट दिस वर्ड क्या मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, और ये हकीकत बात है, हम काफ़ी वर्ड्स, इस पे मैं आगे और वीडियोस निकालने वाली हूँ, हम कितने वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं और वो पता चली आ रही है।
ओके, सो अभी इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, इतने सारे वीडियोस आ गए जिसमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा. सो लिसन टू दोज वीडियोस एंड ट्राई टू सर्च फॉर द ट्रू प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर दैट वर्ड. सो आप प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम करना शुरू कीजिए, एसेंट को आपका क्लियर कीजिए. ओके, उसके लिए आपके साउंड्स की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है. आपको वर्कआउट करना साउंड्स पे. ये सारी चीजें टिप्स के बाद में सारे इन्हीं चीजों पे वर्कआउट करने वाली हूँ. मैं आपको साउंड से शुरू करने वाली हूँ क्लासेस, जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपके एसेंट, आपके वर्ड सब कुछ बहुत क्लियर होंगे. ये हम आगे की वीडियो में करने वाले हैं बिल्कुल. और मेरी 6th टिप है, डोंट फोकस टू मच ऑन इंग्लिश ग्रामर. आप सोच रहे होंगे इंग्लिश ग्रामर तो कोई भी लैंग्वेज का एसेंशियल एलिमेंट है. एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं. इंग्लिश ग्रामर कोई भी लैंग्वेज का, चाहे आप उर्दू लीजिए, हिंदी लीजिए, कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश लीजिए, उसका एसेंशियल एलिमेंट आपका इंग्लिश ग्रामर ही होता है. बट स्टूडेंट्स, बट गाइस, व्हाट आई एम टेलिंग यू, स्पोकन इंग्लिश के लिए अगर आप इंग्लिश बोलने के बाद में बोल रही हूँ तो आपको ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है. ग्रामर बिल्कुल एसेंशियल है. कोई भी चीज़ को अच्छे से जानने के लिए बिना ग्रामर के हम कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाएंगे. पर आपको टू मच, मैंने यहाँ टू मच लिखा है, आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर पे फोकस नहीं करना है. आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स और फ्रेजेस की थोड़ी सी नॉलेज होगी तो भी आप एक ब्रोकन इंग्लिश बोल सकते हैं. और एक ब्रोकन इंग्लिश के थ्रू आप धीरे धीरे अपने सेंटेंसेस को बहुत क्लियरली आप पहुंचा सकते हैं विदाउट टू मच इन्वॉल्विंग इनटू द ग्रामर. ओके, मैंने फिर से कहा, आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए. ग्रामर एसेंशियल एलिमेंट है लैंग्वेज का, बट स्पोकन इंग्लिश के लिए आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए. मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ. आप कोई भी नेटिव ब्रिटिश नेटिव में चले जाइए, वहाँ के लोग इंग्लिश का नेटिव लैंग्वेज है उनका, बट उनको यहाँ तक भी नहीं पता होता है कि फ्रेजल वर्ब्स क्या है. ओके, फ्रेजल वर्ब्स क्या है, और वो वर्ब्स बोल रहे होते हैं, ऑलरेडी वो बोल रहे होते हैं, बट उनको पता नहीं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या है. मतलब उनको ग्रामर का वो पार्ट नहीं पता होता है, बट दे आर ऑलरेडी यूजिंग इन द लैंग्वेजेस. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप कंप्लीटली ग्रामेटिकल वे में जाके नहीं बोल सकते. आप यूजुअली उनको बोलते बोलते वो हाइड हो जाएंगे कुछ चीज़ें आपकी. ओके, सो यू डोंट हैव टू फोकस टू मच ऑन इंग्लिश ग्रामर. यू जस्ट हैव टू see to it that those vocabulary words and phrases and few sentences, if you are trying to speaking them off and some grammatical problems होती है तो वो hide हो जाती है, they are unseen like. चलिए next, watch English movies and listen to English songs. यहाँ हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं और मूवीज की बात हो रही है, सॉन्ग्स लिसन करने की बात हो रही है, तो एग्जैक्टली ये इंग्लिश सीखने का एक बेस्ट तरीका है. इंग्लिश मूवीज हम जितने देखेंगे तो उनकी हम लैंग्वेज, उनकी वे ऑफ टॉकिंग, उनकी बॉडी एक्सप्रेशन सारे हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. आजकल इंग्लिश मूवीज में नीचे आप चाहे तो हिंदी का भी ट्रांसलेशन आता है. सो आप उससे उन वर्ड्स की वोकैबुलरीज आपके पास कलेक्ट होंगे फर्स्टली, और दूसरी आप वो स्टाइल सीखेंगे जिस वे में वो इंग्लिश में इंटरेक्ट कर रहे हैं मूवी में एक दूसरे के कैरेक्टर्स के साथ. Okay, so that is the good way to learn English if you are watching English movie or listening to English songs. Songs में भी बहुत सारे vocabulary words को आप कैच कर सकते हैं और बहुत सारे आप नई चीज़ों को जान सकते हैं. मेन उनकी स्टाइल को आप सीखने की कोशिश कर सकते हैं. In what way you can use these words. So next, so watching English movies and listening to English songs are the best way to learn English. So next, we'll move to make use of technologies. Yeah, this is we are already doing. ये मैं खुद कर रही हूँ. मैं YouTube चैनल हमारी एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मैं आपको स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करवाने की, लर्न करवाने की, इम्प्रूव करवाने की कोशिश कर रही हूँ. सो दिस बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गई है आजकल हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में. सो हम उन्हीं टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके यूट्यूब चैनल्स, गूगल्स के थ्रू हम बहुत सारे टिप्स हम ले सकते हैं. बहुत सारे इंग्लिश स्पोकन के इंग्लिश स्पेशलिस्ट के साथ, है ना, हम लोग इंग्लिश को इम्प्रूव करने के टेक्निक सीख सकते हैं. नेक्स्ट इज अवर प्लान योर कन्वर्सेशन व्हेन यू कैन. ओके,
व्हाट दिस मीन्स, कन्वर्सेशन, बातचीत। सो आप जैसे आप एक स्कूल में हैं, आपको असेंबली में कुछ बोलना होता है, आपको स्टेज पे कुछ बोलना होता है, आप अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हो आपको प्रेजेंटेशंस देने पड़ते हैं। सो और इन ऑल दिस केसेस आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं फर्स्टली। ओके, सो हमारे टाइम में ये कहा जाता था कि मिरर के सामने खड़े हो जाओ और प्रैक्टिस करो। Okay, so that is the good way. It's a very practical way to learn English and to remove those hesitation. क्योंकि हम 10,000 लोगों के सामने जैसे घबराते हैं, तो अकेले में प्रैक्टिस करने में हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं and it will really helps you out. Okay, so आप प्लान कीजिए अपनी कन्वर्सेशन कि आज मुझे ये बोलना है, तो मैं कैसे शुरुआत करूंगी, कैसे स्टार्ट करूंगी, मैं क्या क्या मिस्टेक्स कर सकती हूँ, ओके, मेरे एरर्स क्या हो सकती है, ट्राई टू वर्क ऑन दोज एरर्स। ओके, सो ट्राई टू प्लान योर कन्वर्सेशन व्हेन यू कैन, जब जब पॉसिबल होगा तब तक करने की आप कोशिश कीजिएगा। ओके, सो मेक इंग्लिश फ्रेंड्स, ओके, इंग्लिश फ्रेंड्स एंड इंटरेक्ट विद देम। या इंग्लिश फ्रेंड्स मीन्स आप आजकल जैसे कि मैंने कहा टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया है, ज़माना हो गया है, तो काफ़ी ऐसे ऐप्स है जिनके थ्रू आप इंटरनेशनल फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके कांटेक्ट में आ सकते हैं, ओनली फॉर टू लर्न बेटर इंग्लिश। ओके, सो आपको उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं, बातचीत के लिए जैसे होता है, आप इंग्लिश फ्रेंड्स करके आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बिल्कुल हेल्प आउट करेंगे, बट यू हैव टू चूज द राइट पर्सन्स। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस केस, और उनके साथ बातचीत करने की कोशिश कीजिए, इससे भी आप अपनी इंग्लिश को काफ़ी लेवल तक इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस आर द 10 टिप्स विच आई गेव यू टू लर्न a better English, to improve your fluency, and that's all for today. I hope you like my tips, और इन टिप्स को प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इनमें से कम आप कुछ तो नॉर्मल टिप्स पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप जिसमें जो आपको लगे कि नहीं ये थोड़ा सा हार्ड है, तो गो few tips like as read out loudly, listen and start speaking with the new words and work on your pronunciation। इस तरह की कुछ 4-5 टिप्स पे पहले वर्कआउट करना शुरू कीजिए, and then you will try the other tips which I gave you today, and I will very sure that you will definitely go through all these hesitations which you are facing to speak English. I hope you like my video of today, और मैं इस तरह की और मोर टिप्स के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आपको मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगी, जिसमें मैं स्टार्टिंग इंग्लिश से स्टार्ट करने वाली हूँ और आपको कम्प्लीटली हिंदी इंग्लिश दोनों वे में समझाने वाली हूँ। ओके, सो until we'll meet in the next video, until then take care and please be connected to my YouTube channel and like it if you like my video. Thank